Dear students of class 11th, Assalamu alaikum. So today we are going to discuss fluids. Fluids. Now, what is a fluid? A substance that flows. It is a substance that flows, right? So a substance that flows is known as fluid. Fluid means liquid and gas. Liquid and gas. That is having no definite shape but having a definite volume. Definite volume. Now, the point arises here, that is hydrostatics. Hydrostatics. So it is that branch of physics which deals with the fluids at rest. Fluids at rest, right? And there is one more term that is known as hydrodynamics. Hydrodynamics means fluids in motion. So in the coming lectures, we have to discuss both the concepts, that is hydrostatics and hydrodynamics. So let us start hydrostatics. In hydrostatics, let us consider a liquid which is placed in a vessel, which is fitted with a piston. So this is a liquid placed in a vessel which is fitted with a piston. When a force F is applied on the piston, what happens? A force when applied on the piston, pressure of the liquid increases but the volume decreases. So what is pressure? Pressure means it is force per unit area. Force per unit area. Acting perpendicular. That is force acting perpendicular to the surface. Perpendicular to the surface of the liquid, right? That is known as pressure. So pressure, if F is equal to force, P is equal to pressure, and A is equal to area of the surface, then we can write P is equal to F divided by A, which is known as force per unit area. सो अगर इसका यूनिट डिराइव कर लेंगे तो ऐसा यूनिट इसका होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इसका CGS यूनिट हो सकता है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. इसकी डायमेंशनल फार्मूला बन सकती है M1 L1 T - 2 फोर्स का डिवाइडेड बाय एरिया का, दैट इज L2. सो वी विल गेट हियर इट इज M1 L - 1 T - 2. This is same as that of the stress. तब इसका नेचर देख लेंगे. As the force is applied, pressure is exerted on the bottom and on the walls of the container. That means it is transmitted in all directions. So there is no definite direction. So we treat it as it is a scalar quantity. Scalar quantity, right? So this Newton per meter square. Newton per meter square is known as Pascal. So which is abbreviated as PA. So SI सिस्टम में इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है
या इसका यूनिट जिसको हम कहते हैं दैट इज प्रेशर, राइट। नाउ व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द प्रेशर? consequences of the pressure तो एक पॉइंट, तो कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। एक पॉइंट आपका रीजनिंग क्वेश्चन है, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, रेलवे ट्रैक्स दे आर laid on a large sized wooden planks, laid on large sized wooden planks। तो इसमें आपको रीज़न बताना होगा कि आप रेलवे ट्रैक जहाँ भी डाल देते हैं वहाँ पे नीचे उसके वुडन प्लैंक्स क्यों डाल देते हैं? आसान सी बात है, जब ट्रेन चलती है इट एक्सर्ट्स अ फोर्स, जब ये फोर्स एक्सर्ट हो जाता है दैट इज ऑन द रेलवे ट्रैक, सो फोर्स पर यूनिट एरिया तो हम प्रेशर कहते हैं। सो जब ये प्रेशर एक्सर्ट कर लेता है ऑन द रेलवे ट्रैक तो देयर इज एन एप्रीहेंशन टू सिंक, तो ये ज़मीन में डूब सकती है। लेकिन क्या काम किया जाता है, एरिया को इंक्रीज किया जाता है और फोर्स जो अप्लाई हो जाता है एंड द एरिया इज डिक्रीज। जब एरिया डिक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। सो व्हाट हैपन्स, एरिया इंक्रीजेस, एरिया इंक्रीजेस, तभी हम लार्ज साइज्ड वुडन प्लैंक्स डाल देते हैं, एरिया इंक्रीज हो जाता है विच डिक्रीजेस द प्रेशर, डिक्रीजेस द प्रेशर, राइट। चलिए ठीक है। नंबर सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट आपका है a sharp knife is more effective in cutting, sharp knife is more effective in cutting than a डल मान लीजिए या blunt, than a blunt knife, ठीक है। फिर से यही प्रॉब्लम आ गई, क्या रीज़न हो सकता है इसका? आप तो जानते हैं प्रेशर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। जब भी हम नाइफ का यूज़ कर लेते हैं इन ऑर्डर टू कट ए बॉडी, अगर वो शार्प होगी तो उसका एरिया स्मॉल होगा और प्रेशर लार्ज होगा। अगर एरिया लार्ज होगा तो प्रेशर स्मॉल होगा। जाहिर सी बात है, जो शार्प नाइफ होगी तो उसका एरिया स्मॉल होगा, एरिया जब स्मॉल होगा तो प्रेशर इसका लार्ज होगा, तो वो आसानी से काट सकती है, ठीक है ना। सो फॉर शार्प नाइफ, इन केस ऑफ शार्प नाइफ area is small, therefore P is large. So when P is large, so it cuts the object easily, ठीक है। But in case of the blunt blunt में एरिया लार्ज होता है और प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तो इसलिए उससे कटिंग आसानी से नहीं हो जाती है। सिमिलरली तीसरी प्रॉब्लम हमारी है, जब हम कैमल की बात करेंगे, दैट वॉक्स ऑन द सैंड, walks on the sand easily as compared to man। जब दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो इसका मास ज़्यादा होता है, इसका वेट भी ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द मैन। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका जो फीट एरिया होता है कैमल का, फीट एरिया वो लार्ज हो जाता है, लार्ज होता है। जब ये लार्ज होता है, हम जानते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया लार्ज होगा तो प्रेशर स्मॉल होगा। दैट मीन्स व्हेन ए इज लार्ज
P is small, इसलिए वो स्मॉल प्रेशर डाल देता है ऑन द सैंडी ग्राउंड एंड वॉक्स इजीली। इसी तरह से एक पॉइंट पे हम शार्प पिन होगी तो वो पायरिस आसानी से हो जाती है एज कंपेयर टू द डल। जाहिर सी बात है जो शार्प होगी उसका एरिया स्मॉल होगा, एरिया स्मॉल होगा तो प्रेशर लार्ज, तो फोर्स अप्लाई करने से प्रेशर लार्ज बन जाता है। सेम फोर्स अगर हम डल पिन पे भी एग्जर्ट कर लेंगे तो वहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो जाता है बिकॉज एरिया इज लार्ज। सो दीज आर नोन एज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रेशर। जहाँ पे भी लार्ज प्रेशर हमें ज़रूरत होगा तो हमें एरिया को डिक्रीज करना होगा, और जहाँ पे स्मॉल प्रेशर ज़रूरत होगा वहाँ पे हम एरिया को इंक्रीज कर लेते हैं। एरिया इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, एरिया डिक्रीज कर लेंगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। नाउ देयर इज अ पॉइंट, व्हाट इज डेंसिटी? As you know, density is equal to mass per unit volume. Mass per unit volume. Density को हम रो से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, that is equal to m divided by v, mass divided by volume। ठीक है, so इसका SI यूनिट होगा that is kg per meter cube, SI यूनिट। इसी तरह से अगर हम CGS यूनिट दैट इज ग्राम पर सेंटीमीटर, CGS सिस्टम का यूनिट जो होगा दैट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी डी फार्मूला अगर लिखेंगे हम, द मास दैट इज m1, वॉल्यूम L3 दैट इज इक्वल टू m1 L माइनस 3 T0 आपका होगा। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला। इसी तरह से अगर इसका नेचर देख लेंगे, नेचर दैट इज a scalar quantity, scalar quantity, right? So इसके बाद हम यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी डिफाइन कर लेंगे। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है जब हम किसी सबस्टेंस की डेंसिटी को रिलेट कर लेंगे, तो इस जब किसी सबस्टेंस की डेंसिटी हम रिलेट कर लेंगे, सो वी हैव टू रिलेट इट विद द डेंसिटी ऑफ अनदर रेफरेंस सबस्टेंस। तो यहाँ पे हम रेफरेंस सबस्टेंस कौन सा लेते हैं? रेफरेंस सबस्टेंस आपका है वाटर, और वाटर की डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस इसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है। और कितनी मैक्सिमम? दैट इज 1000, दैट इज 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। या अगर CGS सिस्टम में लिख लेंगे तो यही डेंसिटी बन जाती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी अगर हम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर लेंगे तो उसका मास 1 ग्राम होगा। अगर हम क्यूबिक मीटर वाटर ले लेंगे तो उसका मास 1000 kg होगा, राइट? तो RD को हम कैसे डिफाइन कर लेंगे? दैट इज डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस, डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, राइट? सो रिलेटिव डेंसिटी की बात जब करेंगे, दिस इज डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस, दिस इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, so it is the ratio of similar quantities, so it is unitless and it is dimensionless, right? So we can also define here density of what? Density of substance is equal to, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम अब नहीं रहा, अगर हमें और डी जानते होंगे इसकी रिलेटिव डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, राइट? तो इस तरह से हमारी एक और डेफिनेशन बन जाती है, दैट इज इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस एंड द डेंसिटी ऑफ द वाटर दैट गिव्स द डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस। तो हमारा अगला पॉइंट है दैट इज पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या होता है? पास्कल्स लॉ simple sir, when pressure is applied to an enclosed liquid, when pressure is applied to an enclosed liquid, ठीक है, to an enclosed liquid, what happens? It is transmitted equally,
it is transmitted equally to every point of the liquid, to every point of the liquid and the walls of the vessel, and the walls of the vessel. तो इस लॉ को हम कहते हैं, दिस इज नोन एज पास्कल्स लॉ, राइट। तो कैसे हम समझ लेंगे इस पास्कल्स लॉ को? आप देख लीजिए, ये हम एक स्फेरिकल वेसल लेंगे जिसमें 4 पिस्टन्स फिट किए हुए हैं। 4 पिस्टन्स आर देयर, 1 पिस्टन, ये दूसरा पिस्टन आपका है, ये तीसरा पिस्टन है, और ये 4th वन है। ऑल और फिटेड, ये सिलेंड्रिकल ट्यूब्स भी हम कहेंगे, फिटेड विद द पिस्टन्स, लेकिन इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज डिफरेंट, दैट इज डिफरेंट। तो इसमें हम लिक्विड ले लेंगे, दैट मीन्स इट इज एन इनक्लोज्ड लिक्विड, it is an enclosed liquid। चलिए, तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 लेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 लेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A3, और यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A4। दैट मीन्स ऑल द सिलेंड्रिकल ट्यूब्स आर ऑफ डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो मान लीजिए यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे F1, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे F2, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे F3, यहाँ पे फोर्स अप्लाई दैट इज F4। सो इट इज इनक्लोज्ड लिक्विड, ऑल द पिस्टन्स आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अपनी अपनी जगह पे सभी पिस्टन्स हैं। तो हम एक पिस्टन को प्रेस कर लेंगे, सो इफ द पिस्टन इज मूव इनवर्ड्स, जाहिर सी बात है प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये पिस्टन्स, जो बाकी पिस्टन्स हैं, दे विल नॉट रिमेन इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, दे विल मूव आउटवर्ड्स। लेकिन अगर हम इनको आउटवर्ड्स मूव होने नहीं देंगे, सो वी हैव टू अप्लाई द फोर्स। F2 अप्लाई करना होगा, F3 अप्लाई करना होगा, F4 अप्लाई करना होगा। जब यहाँ पे बात कर लेंगे, तो यहाँ पे हमने F1 फोर्स अप्लाई किया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, तो यहाँ का प्रेशर बन जाता है दैट इज F1 डिवाइडेड बाई A1, F1 डिवाइडेड बाई A1। जब ये प्रेशर अप्लाई हुआ, इट गेट्स ट्रांसमिटेड टू एवरी पॉइंट ऑफ द लिक्विड एंड टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो इस प्रेशर से ये पिस्टन भी आउटवर्ड्स मूव होगा, ये पिस्टन भी आउटवर्ड्स मूव होगा, ये पिस्टन भी आउटवर्ड्स मूव होगा। इन ऑर्डर टू कीप देम इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इनको बाहर मूव होने नहीं देना है, सो वी हैव टू अप्लाई द फोर्स F2, F3 एंड F4। तो ये पिस्टन्स अपनी जगह पे तभी रह सकते हैं जब हम इतना ही प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट कर लेंगे। So for that we have to apply here, that is pressure F2 divided by A2, यहाँ पे F3 divided by A3, और यहाँ पे F4 divided by A4। ठीक है, तो ये सभी पिस्टन्स अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में होंगे, तभी होंगे जब आपका P1 that is F1 डिवाइडेड बाई A1 किसके बराबर होना चाहिए, दैट इज F2 डिवाइडेड बाई A2, दैट इज इक्वल टू F3 डिवाइडेड बाई A3, दैट इज इक्वल टू F4 डिवाइडेड बाई A4। सो इम्प्लाइज ये आपका P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3 इज इक्वल टू P4, तो ऑल आर इक्वल टू P, दैट मीन्स इक्वल प्रेशर। सो दिस एक्सप्लेन्स पास्कल्स लॉ। ठीक है, इसके बाद what we have to find, that is expression for the pressure. So we have to derive the relation for the pressure. A relation for the pressure exerted by a liquid। ठीक है, तो लीजिए आप एक सिलेंड्रिकल वेसल, सिलेंड्रिकल वेसल में डाल दीजिए आप लिक्विड। तो मान लीजिए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, and the liquid is filled up to a height of h meters, up to a height of h meters. This liquid exerts a pressure on the walls of the container, on the bottom of the container.
ठीक है। एंड हाउ टू फाइंड नाउ, यहाँ पे इसका मास भी होगा और इसका वेट भी होगा, ठीक है ना। दैट वेट एग्जिट्स दैट इज एग्जर्टेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अगर हम पहले फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, so that is equal to mass of the liquid multiplied by acceleration due to gravity, ठीक है। so F is equal to mass, that is equal to density rho होगी, ठीक, that is mass per unit वॉल्यूम। सो मास के बदले में हम रो लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई वी मल्टीप्लाइड बाई जी, रो मल्टीप्लाइड बाई वी मल्टीप्लाइड बाई जी, ठीक है। सो एफ इज इक्वल टू रो, इसी तरह से रखेंगे हम वॉल्यूम के बदले में, वॉल्यूम सिलेंडर का होता है पाई और स्क्वायर एच, हाइट ऑफ द लिक्विड एच है, पाई आर स्क्वायर मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ पे ए एच डाल देंगे और यहाँ पे जी डाल देंगे, ठीक है। नाउ वी हैव कैलकुलेटेड द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक। एफ इज इक्वल टू रो ए एच और जी। तो जब प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे दैट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, सो पी इज इक्वल टू एफ के बदले में रो ए एच जी डिवाइडेड बाई ए और ए कैंसिल हो जाएगा, सो पी इज इक्वल टू रो जी एच एंड दिस गिव्स द pressure of the liquid that is exerted on the walls of the container. तो जाहिर सी बात है pressure depends upon the density of the liquid and it also depends upon the height of the liquid, ठीक है। So how this pressure varies, so that will be discussed in the next lecture inshallah. Thank you.